بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز پرائم ٹائم بلیٹن میں خوش آمدید۔ میں ہوں یاسر رشید، میں ہوں عائشہ انصاری اور میں ہوں مہوش نثار۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کی آمدن بڑھ گئی، ٹیکس بھی کئی گنا اضافی ادا کیا۔ عمران خان نے 98,54,000 روپے ٹیکس دیا۔ شہباز شریف نے 71,05,000 روپے ٹیکس جمع کروایا۔ آصف زرداری نے 22,18,000 ٹیکس دیا۔ سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے رانا مقبول نے 1 روپیہ بھی ٹیکس ادا نہیں کیا۔ کس پارلیمنٹیرین نے کتنا ٹیکس دیا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایف بی آر کی جانب سے اراکین پارلیمنٹ کی ٹیکس تفصیل جاری۔ وزیراعظم عمران خان نے سال 2019 میں 98,54,959 روپے ٹیکس دیا، جو کہ سال 2018 کے مقابلے میں تقریباً 96 لاکھ روپے زیادہ ہے۔ شہباز شریف نے سال 2019 میں 71,05,000 روپے ٹیکس جمع کرایا۔ شہباز شریف نے 2018 میں 97,30,000 ٹیکس جمع کرایا تھا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے 2019 میں 22,18,229 روپے ٹیکس دیا۔ بلاول بھٹو نے 5,35,245 روپے ٹیکس جمع کرایا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے 5,55,794 روپے انکم ٹیکس ادا کیا۔ اسد عمر نے 42,72,426 روپے انکم ٹیکس ادا کیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے 1,36,808 روپے انکم ٹیکس ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے صرف 2,000 روپے ٹیکس ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے 19,21,914 روپے ٹیکس ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے 66,258 روپے ٹیکس دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے 10,61,777 روپے انکم ٹیکس دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 8,51,955 روپے ٹیکس دیا۔ مسلم لیگ نون کے احسن اقبال نے 55,656 روپے انکم ٹیکس ادا کیا۔ مسلم لیگ نون کے خواجہ محمد آصف نے 2,30,386 روپے انکم ٹیکس ادا کیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے 13,99,000 روپے انکم ٹیکس ادا کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے 9,32,835 روپے انکم ٹیکس ادا کیا۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے 12,57,461 روپے انکم ٹیکس ادا کیا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے 29,025 روپے انکم ٹیکس ادا کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے 5,57,450 روپے انکم ٹیکس ادا کیا۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان معیشت کی صورتحال پر خوش لیکن ترجمانوں سے نالاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ فائنانس بل کو عوامی سطح پر مؤثر طریقے سے نہیں بتایا جا سکا۔ اپوزیشن کے پروپیگنڈے کا توڑ نکالنے کا بھی ٹاسک سونپ دیا۔ کہا آپ کا برانڈ وزیر اعظم ہے جو چور ڈاکو نہیں ہے۔ مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے فہیم اختر۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ترجمانوں کے اجلاس میں وزیر خزانہ شوکت ترین نے ملکی معیشت اور مہنگائی کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ بتایا کہ نومبر کی نسبت دسمبر میں مہنگائی میں کمی واقع ہوئی۔ دعویٰ کیا کہ عالمی سطح پر اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے بعد آئندہ مہینے مزید مہنگائی کم ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کا معاشی صورتحال پر اطمینان کا اظہار، اعداد و شمار عوام کے سامنے پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ دوران اجلاس وزیر اعظم نے شرکاء کو فائنانس بل پر اعتماد میں لیا۔ کہا 2 ارب روپے کے ٹیکسز کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ عوامی سطح پر بتایا جائے کہ ڈاکومنٹڈ اکانومی ملک کی مفاد میں ہے۔ ریفنڈ اور ریبیٹ کے بارے میں عوامی کنفیوژن کو دور کیا جائے۔ پاکستان کے ریزرو 25 ارب ڈالرز تک پہنچ چکے ہیں، جس پر بات نہیں ہو رہی۔ وزیر اعظم نے ترجمانوں کو اپوزیشن کے جعلی بیانیے کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی بھی ہدایت کی۔ بولے اپوزیشن کو کسی صورت خود پر حاوی نہ ہونے دے، انہیں آئینہ دکھائیں۔ اپوزیشن اپنے چور، ڈاکو اور کرپٹ رہنماؤں کو تحفظ دیتی ہے، لیکن آپ کا لیڈر ان کے لیڈر جیسا نہیں۔ فہیم اختر، 92 نیوز، اسلام آباد۔ لندن کے علاقے سلاؤ کی مقامی مسجد میں ممتاز کشمیری رہنما راجہ اسحاق خان کی پہلی سالانہ برسی کے موقع پر تعزیتی تقریب منعقد ہوئی، جس میں تمام مکاتب فکر کے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر برقیات و اطلاعات محمد ریاض، چیئرمین کشمیر گلوبل سپریم کونسل راجہ سکندر اور دیگر شخصیات نے خصوصی شرکت کی۔ تفصیل جانیے وسیم قاسمی کی رپورٹ میں۔ سلاؤ کی جامع مسجد میں ہونے والی تعزیتی تقریب میں راجہ اسحاق خان مرحوم کے 2 صحباب اور کمیونٹی کی دیگر سماجی اور سیاسی شخصیات نے بھرپور شرکت کی اور مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شرکاء نے مرحوم کشمیری رہنما راجہ اسحاق کی مغفرت کے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کی سماجی اور سیاسی خدمات کے حوالے سے اظہار خیال بھی کیا۔ اس موقع پر مسلم کانفرنس کے مرکزی رہنما سردار امجد عباسی، سردار شکیل، سابق ڈپٹی میئر سلاؤ راجہ عزیز، سابق کونسلر چودھری بشارت، راجہ غضنفر نوابی، راجہ شوکت اور چودھری حاجی شبیر سمیت دیگر شرکاء نے
इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा राजा इसहाक तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेहतरीन सफ़ीर थे। बरतानिया में तहरीक आज़ादी कश्मीर के मुजाहरों को कामयाब बनाने में राजा मोहम्मद इसहाक का मुस्बत किरदार नाकाबिले फरामोश है। ओवरसीज़ कश्मीरी कम्यूनिटी उनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर पाएगी। शुरा का कहना था कि कश्मीरी रहनुमा राजा इसहाक की पहली सालाना बरसी पर वो इस बात का अहद करते हैं कि मरहूम के नक्शे कदम पर चलते हुए मसला कश्मीर को दुनिया भर में उजागर करते रहेंगे। शुरा का कहना था कि राजा इसहाक मरहूम कश्मीरियों की मौसर आवाज़ से जिन्होंने कश्मीरियों के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद की। राजा मोहम्मद इसहाक खान जब उनका नाम लें तो ये तारीख़ आज़ादी कश्मीर की अलामत थी। चाहे कोई नारा बुलंद करे कश्मीर का या ना करे, राजा मोहम्मद इसहाक खान वो एक वाहिद शख्सियत थे। वो ख़ुद ही इतना बुलंद कर देते नारा कि दुनिया का तवज्जो कश्मीर की तरफ होता जाता था। राजा साहब का नाम जब भी लें तो तहरीक आज़ादी कश्मीर का सामने आता है। मैं उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। राजा इसहाक साहब इस बरतानिया में और यूरोप सारे में तहरीक आज़ादी कश्मीर के सुर्खेल थे। वो हमेशा अरावल दस्ते का किरदार अदा करते थे। फैमिली को मैं दिल के गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ कि ऐसे बच्चे होने चाहिए कि उनके जो पीछे हमारे हाथ उठाएं और उनके लिए दुआ कराएं बुजुर्गों के लिए। राजा इसहाक खान अपनी मिसाल आप थे, वो बड़ी खूबियों के मालिक थे। डॉक्टर अयूब ठाकर साहब मरहूम अक्सर कहा करते थे कि खुदाई खिदमतगार एक मुजाहिद आदमी, जिसको उनको सुप्रीम कमांडर का उन्होंने खिताब दिया था राजा इसहाक खान साहब को। और अमलन मैं कहूँगा कि बरतानिया में मुजाहिरों के अतबार से अदर दिन तारीख के अंदर मूवमेंट पैदा करने में राजा इसहाक खान का कोई सानी नहीं था। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। I would also like to take this opportunity to mention that my dad, he served a lot for the Kashmir cause for the last 3 decades also, and may Allah Taala give him Jannat al-Firdaus। एक साल पूरा हो रहा जा रहा है राजा इसहाक साहब की रहलत के बाद, और मैं समझता हूँ कि तहरीक आज़ादी कश्मीर का एक बहुत बड़ा बाब बंद हो गया था 1 साल पहले हमसे जुदा हुए जब वो। और आज हम पूरे बरतानिया में जो कश्मीरी कम्यूनिटी है खुसूसी तौर पर, और बिलुमूल कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी दोनों उस इतने बड़े नुकसान का जो अजाला अभी तक मुमकिन नहीं हो सका, और शायद ही कभी ये अजाला मुमकिन हो। हमारी कम्यूनिटी के लिए बहुत बड़ा सरमाया थे। इसहाक साहब ने वो रूह हमारी कम्युनिटी के अंदर बेदार की कि जिसकी कमी हमेशा रहेगी, लेकिन मसला कश्मीर के सिलसिले में जो उन्होंने अपना कलीदी किरदार अदा किया, उन्होंने कश्मीर काज के लिए अपनी ज़िंदगी रकम की थी। उनको हमने खैराज तहसीन पेश किया आज, और उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि जिस तरह हम इकट्ठे मिलकर चलते थे, आज हमें शदीद किस्म की सख्त हमें कमी महसूस हो रही है, क्योंकि जब भी हम मुजाहरा करते थे कश्मीर काज के लिए, वो सबसे आगे होते थे, वो सबसे पहले पहुंचते थे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला बुलंद मकाम अता फरमाए, और मेरी ये दुआ है उनके बच्चों को भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि वो एक इसहाक खान राजा एक मुजाहिद आदमी था। उसने कभी कोई बरादरी नहीं देखी, कोई कौम नहीं देखी, कोई मजहब नहीं देखा। जिस मजहब के साथ भी बददियानती होती थी वो उसके साथ खड़ा हो जाता था। दुआया तकरीब में बरतानिया में मुकीम कश्मीरियों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ इजहार यकजहती किया और तहरीक आज़ादी को दवाम बख्शने के अज़म का इजहार किया। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में अताउल्लाह ईसा क़िल्वी के कॉन्सर्ट में बदनज़मी और बेहंगामी सूरत हाल का मुजाहरा हुआ। लोगों की कॉन्सर्ट के दौरान सिक्योरिटी गार्ड से झड़प भी हुई। नौजवानों का रक्स करने पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने स्टेज के सामने रक्स करने पर उन्हें मना किया, जिस पर पाकिस्तानी नौजवानों और सिक्योरिटी गार्ड्स में लड़ाई झगड़ा हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम हुसैन अमान। मैनचेस्टर में अताउल्लाह ईसा क़िल्वी के कॉन्सर्ट में बदनज़मी और बेहंगामी सूरत हाल का मुजाहरा किया गया। लोगों की कॉन्सर्ट के दौरान सिक्योरिटी गार्ड से झड़प। नौजवानों का रक्स डालने पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने स्टेज के सामने रक्स करने से मना किया, जिस पर पाकिस्तानी नौजवानों और सिक्योरिटी गार्ड्स में तल्ख कलामी और लड़ाई हुई। मैनचेस्टर पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा बच्चों और फैमिलीज की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्सर्ट में ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ शदीद नारेबाजी और एहतजाज भी किया गया। इस
कॉन्सर्ट में बदनज़मी और बेहंगामी सूरत हाल देखकर अताउल्लाह ईसा खिलवी को शो छोड़कर जाना पड़ा। अताउल्लाह को सिक्योरिटी हसार में हॉल से बाहर ले जाया गया। ब्रेक्जिट का 1 साल मुकम्मल होने पर बरतानिया मुश्किलात का शिकार है। कोविड को भी हुकूमत ने बेहतर अंदाज में डील नहीं किया, जिसकी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर हो रही है। कश्मीर का मसला बरतानिया का ही पैदा करदा है, उन्हें ही इसे हल करना होगा। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान ने ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बातचीत करते हुए मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि अवाम का फ़ैसला गलत है। ये रेफरेंडम हुआ था, रेफरेंडम में ये डिसीजन आई थी, लेकिन उसके जो फुल तहसरात हैं, जो इम्पैक्ट है, उसको हम देख रहे हैं। बड़ी थिन मेजॉरिटी थी ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि नहीं क्लियर है, ये बहुत बड़ी ब्रिज थी इस लेवल पे कि स्प्लिट बहुत था मुल्क के अंदर, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी जितनी भी छोटी थी, फैसला था निकलने का और हम निकल चुके हैं। तो सिचुएशन अब इस वक्त यही है कि हम उसका जो फुल इम्पैक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। उसमें यही चीज़ है कि बहुत से जो चीज़ें हैं बिज़नेस के हवाले से वो मुश्किलात भी सामने आ रही हैं। जो ड्राइवर्स की आप बात कर रहे थे, HGV लाइसेंस वगैरह के लिए शॉर्टेज है, वो भी सामने आ रही है। जो मेडिकल की तरफ है वो पहले भी थी, अब और बढ़ रही है पेंडेमिक के नुक्ता नज़र से। तो ये वो मुश्किलात हैं, इसको हमने डील करने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉन्ग टर्म मुल्क का मफाद यही है कि जो हमारा इकनॉमिक बेस है उसको हम मजबूत रखें। अगर आप एक वन लाइनर आपसे पूछूं कि जो इस वक्त बरतानिया की मईशत थोड़ा सा डिक्लाइन की तरफ है, इज़ बिकॉज ऑफ ब्रेक्जिट और बिकॉज ऑफ द कोरोना? आई थिंक द डिफ़िकल्टी यही है कि ये चीज़ें कम्प्लेक्स होती हैं, ब्लैक एंड वाइट नहीं होती जो शॉप करके कहते हैं। मैं ये कहूँगा कि ब्रेक्सिट भी इसमें इन्वॉल्व है, पेंडेमिक भी इन्वॉल्व है, और जो करंट वर्ल्ड का सिचुएशन है उसका भी इम्पैक्ट होता है। तो ये मिल की चीज़ें होती हैं, लेकिन इम्पैक्ट यही है कि मुश्किलात बढ़ रही हैं। बट आप समझते हैं कि जो टोरी गवर्नमेंट है जी, ये इसको कुछ बेहतर तरीके से डील कर रही है ब्रेक्जिट को और कोविड को? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये ठीक तरीके से कर रहे हैं। अगर आप इसको ब्रेक्सिट को देखें तो आप देखें कि सबसे बड़ा जो ख़तरा हमें सामने नज़र इस वक्त आ रहा है कि हमारी जो नॉर्दर्न आयरलैंड की सिचुएशन है, जहाँ पे अमन कायम हुआ था, वो ख़तरे में है। आप जब स्कॉटलैंड को देखते हैं तो ये जो 300 साल 400 साल से ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था हमारा मिल के मुल्कों का चलने का, वो ख़तरे में है। तो ये लॉन्ग टर्म जो मेन इश्यूज़ हैं उसमें ख़तरे पैदा कर दिए हैं इन्होंने। उसके बाद जो फ़ायदे की बात है, जो कहते थे कि अवन रेडी ये डील है, वो भी सामने अब चीज़ें आ रही हैं कि कोई ख़ास डील भी कहीं जगह पे नहीं हो रही। तो ये मुश्किलात तो क्लियर कट वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारी ख्वाहिश तो यही होगी कि गवर्नमेंट राइट पॉलिसीज़ ले। जो आपने पेंडेमिक की बात की है, अगेन आप देखें तो इस चीज़ सामने आ जाती है। जो जितनी मर्ज़ी बातें करें, तो जो रियलिटी ये है कि हमको 160,000 लोगों की जानी नुकसान हुआ है। ये किसी और मुल्क में भी इतना हुआ है? तो क्या वजह है कि जो इतना छोटा मुल्क है और इनके पास NHS सर्विसेज भी थी उसके बावजूद? तो ये क्लियर बात है कि इनकी हैंडलिंग जो थी पेंडेमिक की, ये गलत हुई है। पर्टिकुलरली एवरी स्टेज पे ये लेट हुए हैं। अभी इस वक्त आप देखें कि पूरे जो स्कॉटलैंड में उन्होंने रूल्स रेगुलेशन चेंज किए हैं, वेल्स में उन्होंने चेंज किए हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड में उन्होंने चेंज किए हैं, लेकिन इंग्लैंड में इन्होंने चेंज अभी तक नहीं किए, क्योंकि उनके पार्टी के अंदर इख्तलाफ है इस मसले पे। तो पार्टी के इंटरनल इख्तलाफ को डील करने के लिए उन्होंने लोगों को खतरे में डाला हुआ है। अभी जो हॉस्पिटल एक तरफ पे नए डाल रहे हैं ताकि जो उसको कोप करने के लिए बना रहे हैं जी, तो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भाई हम बंद नहीं करेंगे क्योंकि जो पॉलिसीज़ हैं, पार्टीज़ हैं, होते रहें। दूसरे साल पहले जब हुआ था पार्टी, ये खुद 7-8 इन्होंने डाइनिंग स्ट्रीट में करते रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि नहीं। तो ये जो तज़ाद है, कंट्रडिक्शन जो है, ये सामने है। तो मैं समझता हूँ ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक और बात जो लोग जानना चाहते हैं कि कश्मीर के मसले पर हमने देखा कि आप पार्लियामेंट के अंदर आपकी हमने डिबेट भी देखी है, आपकी बड़ी दबंग तकरीर भी हमने देखी है। तो क्या वजह है कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को, टोरी गवर्नमेंट स्पेशली, कन्विंस नहीं कर पाते कि वो इंडिया के ऊपर इतना दबाव बढ़ाए, या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो, उसको क्या कश्मीर के अंदर अट्रॉसिटीज़ नज़र नहीं आती? आई थिंक मेरे ख्याल में जो असल पॉइंट है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात है। ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट को
प्रेफर कर रही है हुकूमत, इस पे कि जो इंसाफ की बात है। जो हकीकत है वो ये है कि ये इनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो इनका बनाया हुआ है, अनफिनिश्ड एजेंडा ही नहीं इनका है, तो वो आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। अगर आपका काम गलत हुआ है तो जब भी आपको मौका मिले अब करना चाहिए। लेकिन आप जब भी इनसे बात करते हैं हुकूमत से तो सवाल होता है तो ये कहते हैं जी कि ये इट्स अ मैटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये खुद गलत बात है कि ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मसला है, जबकि यूएन के रेजोल्यूशन पड़े हुए हैं। तो यूएन का मसला है, आप परमानेंट मेंबर हैं, आप कॉमनवेल्थ में हैं, 3-4 मिलियन के बशिंदे आपके यहाँ रह रहे हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। कश्मीरी खुद एक अपनी कम्युनिटी है जिसका अपना ये मसला है, उनको आप इग्नोर कर रहे हैं, तो हाउ इज़ दिस राइट? तो इनकी जो पॉलिसी है मैं समझता हूँ ये ड्यूपलिस्ट है, डबल स्टैंडर्ड्स है, और इसको हमें चैलेंज करना चाहिए और हम इंशाल्लाह हर बार करेंगे। बरतानिया में मौजूदा कोरोना वायरस की सूरत हाल परेशान कुन है। बरतानवी बाशिंदे मुतवक्किल लॉकडाउन से खाइफ। दुकानदारों में इजहार तशवीश है, कहते हैं कि अगर लॉकडाउन लगा तो मज़ीद मुआशी हालात अबतर हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने भी मज़ीद सख्तियाँ ताहाल नाफिज न करने का इंदिया दे दिया। साउथ ऑल के मुकामी दुकानदारों और ख़रीदारों ने ब्यूरो चीफ बरतानिया गुलाम हुसैन अवान से मज़ीद क्या कहा, ये देखते हैं। बरतानिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते हुए खतरात। कोरोना वायरस के नए केसेस के पेश नज़र हुकूमत बरतानिया की जानिब से प्लान बी जारी कर दिया गया, मगर आम शहरी मुतवक्किल लॉकडाउन और समाजी सख्त हदायत के हवाले से तशवीश का शिकार। लंदन और गिरदोनवा की मार्केट के दुकानदारों में भी गर्दिश करती खबरों ने तशवीश बढ़ा दी। उनका कहना था कि लोग कोरोना वायरस से बचाव के लिए खुद एहतियात करते नजर आ रहे हैं, इसलिए मजीद लॉकडाउन की तरफ जाना मुनासिब नहीं होगा। नहीं लगना चाहिए, ये है कि सेफ्टी के लिए मास्क वगैरह पहने, इंजेक्शन वगैरह सब लें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। एहतियात करनी चाहिए, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन क्योंकि अब तो लोग यूज़ टू हो गए, अब अपना सेफ्टी तो कर सकते हैं ना। लॉकडाउन से तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, नुकसान होगा। ये लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अगर लॉकडाउन दोबारा हुआ तो बहुत ही मामला ख़राब हो जाएंगे कारोबारी लिहाज से, तो मतलब वो जो अच्छा नहीं है। अब देखें ये इस टाइम पे सारी मार्केट खाली कोई बंदा है ही नहीं। ये हमारा तो जो है मीज़ू का वो पहले सबसे बंद होता है पहले, और वो ऐसा बंद होता है लोगों के कारोबार चलते रहते थोड़े बहुत, लेकिन हमारा जो है बिल्कुल वो बंद हो जाता है। और अच्छा है, पता है क्या एहतियात है, एहतियात ज़रूरी है, लेकिन हमारे काम पर बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। ज़ाहिर है जो पोजीशन इस वक्त चल रही है, जो जिस तरह पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, इसमें प्रॉपर एक होना तो चाहिए, सिस्टम बनना चाहिए दोबारा, ताकि ये मज़ीद इंक्रीज़ ना हो और जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इसमें इस चीज़ के बारे में सोचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्रॉपर लॉकडाउन नहीं भी हो तो स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए लाजमी, ताकि मास्क ज़रूरी होना चाहिए। लॉकडाउन का कोई हल नहीं है वैसे, लेकिन क्योंकि लोगों को खुद ही, आवाम को खुद चाहिए कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, दूसरों को भी प्रोटेक्ट करें, मास्क यूज़ करें, थोड़ा डिस्टेंस रखें, क्योंकि लॉकडाउन से ऑलरेडी बिजनेसेस जितने भी हैं वो तो सब तबाह हो चुके हैं। हुकूमत बरतानिया ने बयान जारी करते हुए कहा कि बढ़ते हुए केसेस यकीनी तौर पर तशवीश का बायस है। ताहम ताहाल लॉकडाउन या मजीद माशी या समाजी सख्तियाँ मुतारिफ नहीं करवाई जाएंगी और कोरोना के फैलाव पर कड़ी नजर रखी जाएगी। आने वाले दिनों में बरतानवी हुकूमत की जानिब से मजीद इकदाम माशी हालात को पेश नजर रखते हुए किए जाने की उम्मीद की जा रही है, जिस पर मुकामी बाशिंदों में इज़्तिराब भी पाया जा रहा है। लोगों का कहना था कि एहतियाती तदाबीर करके ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। लॉकडाउन जो है वो इस मसले का हल नहीं। इससे कबल लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा मईशत को नुकसान हुआ। साथी रिपोर्टर वसीम खत्मी के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। तहरीक इंसाफ बरतानिया के नायब सदर मलिक इमरान खलील ने अपने दौरे यूएई के दौरान पीटीआई दुबई के साबिक सदर जावेद इकबाल चौधरी से खुसूसी मुलाकात की। दो तरफा उमूर पर गुफ्तगू के साथ साथ जमात की मजबूती और आइंदा इंतखाबात में कामयाबी के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं दुबई से मुदस्सिर खुशनूद। पीटीआई बरतानिया के नायब सदर मलिक इमरान खलील इन दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर हैं, जहां वो पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। दौरा के दौरान उनकी खसूसी मुलाकात पीटीआई दुबई के साबिक सदर जावेद इकबाल चौधरी और नौ मुंतखब नायब सदर सैयद कलीमुल्लाह शाह बुखारी से हुई। इमरान खलील ने अमारात की नौ मुंतखब तंजीम को मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर पीटीआई बरतानिया के नायब सदर मलिक इमरान खलील का कहना था कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की ओवरसीज के लिए खिदमात मसाली हैं। इमरान खलील ने ओवरसीज कमीशन पंजाब की कारकर्दगी को मसाली करार दिया और कहा कि पीटीआई का हर कारकुन नजरियाती है और जमात से जज्बाती वाबस्तगी रखता है। आगे आने वाला वक्त जो है 2023 में हमने इलेक्शन जो है उसको किस तरह मैनेज करना है, लोगों को वोट रजिस्टर किस तरह करवाना है,
ये चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर ये वाज़ा हो जाएगा कि इलेक्शन जो है ना वो किस तरह करवाए जा रहे हैं और ओवरसीज़ किस तरह इसको मैनेज किया जाएगा। लोगों को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक मोहब्बत चाहिए होती है, लोगों के इशू जो होते हैं वो जो सर्विस जो हमेशा दिन और रात वो आप जब भी फ़ोन करेंगे वो इंशाल्लाह ताला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हमेशा आगे होकर मिलते हैं। इस मौका पर नायब सदर पीटीआई दुबई सैयद कलीमुल्लाह शाह बुखारी और साबिक सदर पीटीआई दुबई जावेद इकबाल चौधरी का कहना था कि ओवरसीज कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन सैयद तारिक महमूदुल हसन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हल में बहुत संजीदा है। कमीशन बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत खुश हैं जो वोटिंग राइट उनको मिला है और ये वाहिद इमरान खान साहब की हुकूमत में मिला है। बाकी सब पार्टियों ने इसकी मुखालफत की है। मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं लोगों के और कम्युनिटी के भी मसाइल हैं और जो वोट्स का जो सिलसिला है इलेक्टेड प्रोसेस जो है वो अभी हमें वहाँ से नहीं मिला। उस जैसे ही वो 2-3 महीने में इशू होगा उसके ऊपर हम काम शुरू कर दें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन की जो अफादियत है उसको बेहतर तरीके से आगे लेकर चलना है। ख़ुसूसन हम ये अपील करेंगे तमाम पाकिस्तानियों से कि इस फोरम को वो इस्तेमाल करें। ये किसी भी सियासी पार्टी से बालातर होकर ये फोरम हर पाकिस्तानी के लिए अवेलेबल है और जितना ज़्यादा इसको ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस्तेमाल करेंगे इस फोरम को तो उससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल हल करने में और बेहतर मदद मिलेगी। पीटीआई रहनुमाओं ने पार्टी के अंदर हामियों पर बात की और आइंदा आम इंतखाबात से पहले इन हामियों को दूर करके अपने कायद इमरान खान की क़यादत में पार्टी की जीत में अपना किरदार अदा करने पर भरपूर अज़्म का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात। पख्तून बिजनेस एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से दुबई के मुकामी होटल में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म के एजाज़ में एक पुरवकार इशाए का अहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी मीडिया, बिजनेस कम्युनिटी और सियासी और समाजी सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सर खुशनूद। एक्सपो 2020 दुबई में वफाक, पंजाब और सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी सरमायाकारों को रागिब करने के लिए मुतहरिक हो गई। दुबई में मुकीम बिजनेस कम्युनिटी और गैर मुल्की सरमायाकारों से राब्तों में तेजी आ गई। सदर पख्तून बिजनेस एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन UAE की जानिब से दुबई में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म के एजाज में एक पुरवकार इशाया का अहतमाम किया गया, जिसका मकसद खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी को फरोग देना था। इशाया में डायरेक्टर जनरल टूरिज्म एंड कल्चरल अथॉरिटी कामरान आफरीदी, एजाजी काउंसलर ऑफ ताजिकिस्तान, वाइस चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड इंजीनियर सईद महमूद समेत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नुमाइंदों ने शिरकत की। इशाया के मेजबान सदर पख्तून बिजनेस एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन UAE इंजीनियर जुबैर खान का कहना था कि KPK हुकूमत ने हमारे हदशात को दूर किया है। अब KPK में भी सरमायाकारी के दरवाजे खुलेंगे। हमारे जो भी क्वेश्चंस थे और जो भी हमें कंफर्मेशन चाहिए थी और सेटिस्फेक्शन चाहिए थी उन्होंने बहुत हमें सेटिस्फाई किया है। और दीज आर द थिंग कि एक इन्वेस्टर जब पाकिस्तान में जाता है ही वांट सेटिस्फैक्ट्री एंड सेफ्टी ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो दिल से काम कर रहे हैं। तो इनकी ये जो लगन और मोहब्बत देखकर हमें 100% हम श्योर है कि इन्वेस्टमेंट होगी और बहुत ज़्यादा होगी। जिस तरह आपने देखा हमारे दोस्त सिग्मा ग्रुप दे ऑलरेडी कमिट एंड वी हैव जॉइंट वेंचर, वो फरवरी में अपना सेटअप पाकिस्तान में बना रहे हैं। डायरेक्टर जनरल टूरिज्म एंड कल्चरल अथॉरिटी KPK कामरान आफरीदी का कहना था कि KPK में सरमायाकारी के लातादाद मौके मौजूद हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ मुकीम पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी और दीगर सरमायाकार KPK में सरमायाकारी करें। हमारे अपने वतन के जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया में कर रहे हैं, उनको हम अट्रैक्ट करें, वो भी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। और इसके अलावा दुनिया के बाकी इन्वेस्टर्स जो हैं उनको हम खैबर पख्तूनख्वा दुबई लेके आए हैं। हम पूरा 1 महीना एक्सपो में प्रेजेंट भी करेंगे और उनके साथ कोशिश करेंगे कि हम जितने ज़्यादा इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकें और लेके जाया जा सके उसको लेके जाएंगे। इशाया तकरीब में जनरल सेक्रेटरी पख्तून बिजनेस एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हलील बुनेरी, मारूफ बिजनेसमैन जन्नत आफरीदी, सदर PTI UAE मोहम्मद नवाज खान जदून, सदर पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा खालिद हुसैन चौधरी समेत दीगर ने शिरकत की। अभी हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन और टूरिज्म और इन्वेस्टर के लिए ऐसे माहौल हमने फराहम किया है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इस बात पे फख्र करेंगे कि हम जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके लिए 70% फॉरेनर अप्लाई करते हैं। आखिर में मेहमानों की पाकिस्तानी रवायती खानों से तवाज़ो की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात। साल नौ की आमद पर कावादा गौसुल वरा के चश्मो चराग
عصر حاضر کے عظیم روحانی پیشوا جگر گوشہ غوث اعظم سید عفیف الدین الجیلانی البغدادی دامت برکاتہم نے 92 نیوز کے ذریعے امت مسلمہ، نوجوان نسل، ملائیشیا اور پاکستانی قوم کے لیے خصوصی پیغام پیش کیا۔ This new year now should be different. We are not talking about year, but we talk about numbers and activities. And hopefully we will leave a good fingerprint, all of us, for the people to understand, for the people to listen to, and for us to be a people of people, not people of our own selves. Work for all so that Allah will grant you the reward of all. May Allah ease it, and may this year, inshallah, be the year of unity, rebuilding us, rebuilding what has collapsed and affected, rebuilding the people, the mentality, the thinking, the belief, so that we will live peacefully and leave peacefully, inshallah. It was very unfortunate. The closing of the year it happened because of, that flood, and this very misfortune happened during the end of the year. But that is something which happened, the action, the reaction of the people. I was amazed, in fact, with the amount of help and support everyone gave to the people, government and NGO and individuals. It was really amazing that we did something, alhamdulillah, with our brothers and sisters. But wherever we go, we'll find support. We'll find people reaching, they try to reach first. So that's something which is very important, and this is the unity we used to talk about, to help the people in a time of difficulties. If you want to help someone in a time of ease, he will remember it. But time of difficulties, it will be written in his heart, and he won't forget. Plus, for us, for the people who helped, Allah subhanahu wa ta'ala will protect them from any misfortune, first of all. Secondly, He will give them the highest reward. They are the people whom Allah loves the most, who are assigned to help people in their difficult time. I will say that how they overcome this problem, or they're building themselves nicely to overcome this problem, this is something to be recorded, something to be noticed, and something to be observed by all of us, and not only in Malaysia but everywhere. I will say to Malaysia, well done, Jazakumullah khair. Hopefully they will do it inshallah completely and very fast. یونان میں معروف صحافی خالد مغل پاکستان جرنلسٹ کلب رجسٹرڈ کے نئے صدر منتخب ہو گئے۔ جرنلسٹ کلب ایتھنز میں گزشتہ روز انتخابات ہوئے، جس میں 20 کے قریب اراکین نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ نو منتخب صدر خالد مغل نے کمیونٹی اور ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ جانتے ہیں شاہد غمن کی رپورٹ میں۔ یونان میں معروف صحافی خالد مغل پاکستان جرنلسٹ کلب رجسٹرڈ کے نئے صدر منتخب ہو گئے۔ جرنلسٹ کلب ایتھنز میں گزشتہ روز انتخابات ہوئے، جس میں 20 کے قریب اراکین نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ اس موقع پر موجود صحافیوں نے صدر منتخب ہونے پر خالد مغل کو مبارکباد کا پیغام دیا اور الیکشن کمیٹی آف پاکستان جرنلسٹ کلب رجسٹرڈ یونان کو شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کروانے پر خراج تحسین پیش کیا۔ نو منتخب صدر خالد مغل کا کہنا تھا کہ صدارتی الیکشن میں حق رائے دہی استعمال کرنے والے صحافیوں نے پاکستان جرنلسٹ کلب رجسٹرڈ یونان کے پلیٹ فارم کو مضبوط کرنے اور ملک و قوم کی فلاح کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج اس قابل بنایا کہ میں آج اپنے ہم وطنوں پاکستانیوں کے اور صحافی برادری کے کام آ سکوں، اور اس کے بعد میں آپ سب معزز جرنلسٹ کلب کے معزز اراکین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ شرکاء نے پاکستان جرنلسٹ کلب رجسٹرڈ یونان کی قانونی تکمیل کروانے پر سابق صدر احسان اللہ خان کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ نو منتخب صدر خالد مغل سمیت دیگر اراکین نے ایسے تمام صحافیوں کو کلب میں شامل کرنے کا اندیہ دیا جو ابھی تک کلب کا حصہ نہیں۔ شاہد گومن، 92 نیوز، ماسکو، روس۔
سندھی ایسوسیشن UAE نے متحدہ عرب امارات کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر دبئی کے شیخ رشید آڈیٹوریم میں سندھی ثقافتی دن اور میگا میوزیکل نائٹ منائی، جس میں 7 امارات سے بڑی تعداد میں سندھی خاندانوں نے شرکت کی اور تقریب کا بھرپور لطف اٹھایا۔ مدثر خوشنود کی رپورٹ۔ سندھی ایسوسیشن UAE کی جانب سے متحدہ عرب امارات کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر دبئی کے شیخ راشد آڈیٹوریم میں سندھی ثقافتی دن اور میگا میوزیکل نائٹ منائی گئی۔ تقریب میں متحدہ عرب امارات کی سماجی اور کاروباری شخصیات مسٹر واشو شرف، مس آشا چند، معروف اماراتی بزنس مین یعقوب العلی، صدر یوتھ اینڈ وومن امپاورمنٹ ہر ایکسیلنسی لیلا راہیل الفتانی، دبئی پولیس کے سینئر آفیسر ڈاکٹر حذیفہ ابراہیم نے شرکت کی۔ شو کا آغاز شاہ بٹائی کی شاعری اور متحدہ عرب امارات کے قومی ترانے سے کیا گیا۔ ثقافتی دن کو خوبصورت بنانے کے لیے احمد مغل، استاد رجب فقیر، انینا فدا جتوئی اور نازیہ امین محمد کی جانب سے قومی ملی نغمے پیش کیے گئے۔ ثقافتی دن کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے سندھی ایسوسیشن آف UAE کے چیف آرگنائزر ماجد حیدری نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اپنے قیام سے ہی سماجی اور ثقافتی سرحدوں پر توجہ دے رہا ہے اور ہم اپنی سندھی کمیونٹی کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ تقریب میں سفیر محفوظ کوآپریٹو سروسز عبدالعزیز احمد، حافظ محمد علی، چیئرمین بلوچ ریئل انویسٹمنٹ یاسین خالد، پاکستان امبیسڈر سیکرٹری روشن وڈوانی، پاکستانی اسٹار کرکٹر عمران نذیر، کنٹری مینیجر PIA مظہر عباسی اور دیگر نے شرکت کی۔ سندھی ثقافت اور UAE کی گولڈن جوبلی کے حوالے سے شرکا نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ We know Dubai is a big diversity and we have 210 community and the Sindhi families today are making impact, especially with 50 years of UAE. The Sindhi Cultural Day today is a big challenge for humanity, unity and happiness. I wish them all the best and I'm very pleased and glad to be part of that. دبئی اور UAE کلچرل ڈائیورسٹی کا ایک ہب ہے، تو اس میں پھر ہمارے جو سندھی بھائی ہیں انہوں نے یہ جو رنگ رچایا ہے اور یہ جو کلچرل ڈے ہے جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو یہاں پہ سندھ کی خوشبو ہی آئے گی، اور یہ ایک پیغام ہے سب کے لیے کہ آپ جہاں بھی رہیں مل کے رہیں اور یونٹی کے ساتھ رہیں، اور لیکن اپنی جو روٹس ہیں اس کو نہ بھولیں۔ ہماری سندھ جو ہے وہ صوفیوں کی سرزمین ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر سچل سرمس تک ہمارے ہاں بہت بڑے شاعر، بزرگ شاعر وہ سندھ میں ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری روایات میں محبت، مہمانداری، درگزر اور کوئی تفریق نہیں ہے۔ بہترین موقع ہے جہاں مختلف کنٹریز کے معاملات کے لوگ آ کے اور ملتے ہیں، سارے الگ ملکوں سے۔ بڑا اچھا ماحول کریٹ کیا ہوا ہے، بڑا خوبصورت تھا۔ असांखे ॾाढो मज़ो पियो अचे, ॾाढी ख़ुशी शी पई पंहिंजे कल्चर के रिप्रेजेंट कंदे, और हमारा कल्चर जो है वो दुनिया में अनोखा है। दुनिया में हमें खुशी होती है जब हम क्योंकि हमारा कल्चर आपको पता है 5000 साल से भी पुराना है। I was surprised कि इंडिया के सिंधीज इंटरेस्ट ले रहे हैं पाकिस्तान, तो देन आई केम टू नो कि सिंधीज दोनों तरफ से वही रिच कल्चर है, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई डू एनकरेज कि ऐसे कल्चरल शोज़ होने चाहिए जो ना सिर्फ अपने कल्चर को शो करे बल्कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक बाउंड्री भी कायम करे। बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की, और जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल डाइवर्सिटी जो है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास जो गेस्ट हैं वो पूरे हमारे पास कुछ दोस्त हमारे कनाडा से आए हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया से आए हैं स्पेशली फॉर द इवेंट। अमेरिका से हमारे 2 दोस्त आए हुए हैं, वो आए हैं। सिंध से हमने स्पेशली बहुत सारे आर्टिस्ट को साथ और स्पेशल गेस्ट मंगाए हुए हैं। सिंध धरती बहुत कदीमी हमारी रवायात है, हमारी सकाफत है जो 5000 साल पुरानी है, उसको उजागर रखने के लिए हम दुनिया के कहीं भी कौन से भी कोने में होंगे तो अपनी सकाफत को उजागर करेंगे, कोशिश करेंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इतना बड़ा मेगा म्यूजिकल इवेंट और कल्चरल प्रोग्राम, और इसके साथ साथ UAE का 15 इयर्स गोल्डन जुबली जो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जिसमें UAE के लोकल्स भी आए हैं, अमेरिका से कुछ सिंधी फैमिलीज आई हैं, कनाडा से और सिंध पाकिस्तान से आए हैं लोग। मुझे
बहुत खुशी हो रही है। इस मौका पर शुरका ने मिलकर यूएई की 50वीं गोल्डन जुबली का केक काटा। कौमी त्योहार में मेहमानों और फनकारों को तोहफे और शील्ड भी दी गई। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में नादिर सोलंगी, मेहराब सोमरो, जवाद सदीकी और दीगर शामिल थे। सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, मुत्तहिदा अरब अमारात। अमेरिका की ईस्ट और मिड वेस्ट की रियासतों में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज होकर रह गया। हुकूमत ने शहरियों को बगैर ज़रूरत घर से बाहर निकलने की तंबीह कर दी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि अमेरिका भर में बर्फबारी की क्या सूरत हाल है। खुर्रम शहजाद, कहिएगा। जी बिल्कुल, अमेरिका भर में ईस्टर्न और मिड वेस्ट रियासतों में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त रियासत वाशिंगटन में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे शदीद बर्फबारी कल रात से हो रही है। हुकूमत की तरफ से तनबीह की गई है कि बगैर किसी मकसद के घर से ना निकलें। तो अगले 3 दिन जो इसी तरह से दर्जा हरारत में बदतरीज कमी आएगी और इस स्नो के तूफ़ान के बाद यहाँ पर स्लीट होगी, जिसके ऊपर चलना भी मुश्किल होता है। तो मिड वेस्ट की जो रियासतें हैं वहाँ पर पिछले 2 हफ्तों से शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है और लोग जो हैं वो अपने घरों पर कामों पर नहीं जा सके, क्योंकि बर्फबारी की वजह से उसको वहाँ पे जो सड़कों की सफाई है वो भी मुश्किल दिखाई दे रही है। इसी तरह से रियासत जो मैसाचुसेट्स बॉस्टन में कनाडा की तरफ से आने वाली हवाओं के नतीजे में वहाँ पे दर्जा हरारत में बहुत कमी आई है और शिकागो इलिनॉय, रियासत इलिनॉय के शहर शिकागो में शदीद तूफ़ानी जो हवाएं हैं उसके नतीजे में -30 दर्जा हरारत वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। तो अमेरिका भर में जो बर्फबारी का जो सिलसिला है अगले 2 हफ्तों तक जारी रहेगा, जिसके नतीजे में शदीद वहाँ पे जो बिजली का बहरान जो हर साल आता है वो भी वहाँ पे बिजली बंद होने की बहुत इतलात आ रही हैं बहुत सी रियासतों से। अभी तक सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बर्फबारी और तूफ़ान के सिलसिले में मिड वेस्ट रियासतों में 11 अफराद के हलाक होने की इतलात आई हैं। तो अभी यहाँ पे वाशिंगटन में ये कहा जा रहा है कि अगले 3 दिन जो हैं ये तूफ़ान के जो असरात हैं यहाँ पे रहेंगे, जिसके नतीजे में लोगों के कामों में जाने मुतासर होंगे। इसके अलावा पब्लिक गैदरिंग के ऊपर हाथों ओमिक्रॉन की मौजूदगी में हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि पब्लिक गैदरिंग जो है वो ना की जाए। तो इसी हवाले से जैसे जैसे मौसम की जो अपडेट्स आते रहेंगे वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जी, सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफा होने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1746 नए मरीजों की तशख़ीस हुई। सऊदी महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस के मरीजों में एक बार फिर से इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1746 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जिससे मजमूई तौर पर अब तक 5,59,852 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 अफराद वबा की वजह से लुक़मा अजल बन गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 8,881 हो चुकी। कोरोना की नई लहर के पेश नज़र एक बार हिफाजती इक़दामात लागू कर दिए गए हैं। हरमैन शरीफैन में भी समाजी फासले की शर्त दोबारा आयद कर दी गई। इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम पसीर हुआ। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।